Success Mantra. We shape future. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका सक्सेस मंत्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो आपके पास वीडियो आई है दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनसीएचएमसीटी जेई। जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है, एनसीएचएमसीटी जेई एज द नेम नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन होटल मैनेजमेंट कोर्सेज, especially the government institution, you have to appear for NCHMCT JEE. NCHMCT JEE के अंडर में there are number of central government colleges, there are number of state government colleges and few of the private institution as well. मैंने एक वीडियो इस पर ऑलरेडी अभी शूट किया था, which was a short video depicting that the tie-up between NCHMCT and IGNOU has now been revamped and अब NCHMCT का tie-up instead of IGNOU हो गया है JNU के साथ, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ, which is in Delhi. So if you are let's say if you are studying in IHM Pusa or for that matter IHM Mumbai, Bangalore, Kolkata, XYZ, जिस भी कॉलेज में आप हैं, आपको जो डिग्री ऑफर की जाएगी that would be by जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी Delhi. That definitely is going to create a paradigm change in the institutional way itself, और साथ में placement से लेकर everything would certainly be changed, and the change is for good only. So once you appear for the exam, the results are out, you are up for your counseling, you get your dream college, or for that matter any of the good colleges, complete your graduation program, then you have an option to go for placements in any of the reputed 5-star properties, or for that matter any of the hotel properties. You can look for the opportunities in fast moving consumer goods segment. You can go in say retail industry, you can look for say aviation sector. Aviation के अलावा you have number of options. आपके पास cruise liners का भी option है, आपके पास ultimately और भी options हैं. You can go for higher studies as well. Higher education institution में आप admission लेते हैं, you can go for MSc, you can go for MBA. There are a number of options, or we can say ocean of opportunities are there. But to reach out to that extent, the very first thing is to take admission in any of the prestigious institution, and for that you need to appear for NCHMCT JEE. This year the NCHMCT JEE exam is scheduled to be held on 14th of May. The registrations are open till 17th of April. You can just have a glance over the NCHMCT prospectus as well. The exam will be conducted by National Testing Agency, NTA इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाला है. और क्या है इस एग्जाम का modus operandi, how should we proceed, what sort of things do we need to keep in mind before starting the preparation, or for that matter if we are into the preparation, what sort of things do we need to take care of. Everything and anything has to be explained, and in this video we are going to look at all those segments. So let's begin with the very first slide. Success इतना simple भी नहीं है. वॉल्ट डिज्नी का एक कोट है आपके सामने, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. अगर आप में ग्रिट है, अगर आप में परसिवियरेंस है, अगर आप में दृढ़ता है, तो कोई रोक नहीं सकता आपको. So the very first thing is, हम जब भी सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस मंत्र में आपको सक्सेस के मंत्र तो मिलते ही रहते हैं. It is very important that you follow those footsteps. आपको उसको फॉलो करना is equally important. मैंने कुछ कह दिया, आपने उसको उस रूप में नहीं समझा या इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से की, there might be certain number of changes. हो सकता है बुलसाई हिट हो जाए, हो सकता है ना भी हो. तो यहाँ पर एक चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो होता है कमिटमेंट, किसी पर्सन से नहीं, इंस्टेड अपने आप से. तो आपको अपने आप से एक कमिटमेंट करना है दैट यू विल गिव योर 100%. ठीक है, आपने 100% दिया, उसके बाद रिजल्ट अप टू एक्सपेक्टेशन आता है, वेल एंड गुड. नहीं आया, एटलीस्ट यू विल हैव दैट मच सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन दैट आई ट्राइड माय बेस्ट. ठीक है, तो अगर आपके पास सारी चीजें, रिसोर्सेज आपके पास हैं, एक गाइड है, एक मेंटोर है आपके पास, यू हैव दैट फायर इन यू, यू हैव दैट इनिशियल थ्रस्ट, आपके पास जब सब कुछ है, सो व्हाई लैग बिहाइंड. स्टार्ट करिए प्रिपरेशन. कैसे करना है स्टार्ट, उस पर हम जरूर एक डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में. सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी हम एनसीएचएमसीटी की बात करते हैं, द एग्जाम pattern has to be understood. It is not just about NCHMCT. For that matter, any of the exam, if you are going to
start the preparation, the very first thing which you need to understand is that what sort of questions do the exam target for? What all sort of sections do we have? How much questions are there in each section? What is the way of marking, whether there is negative marking or not? Language of the exam कौन सा है? Is it an English only या bilingual है? Bilingual exams बहुत कम होते हैं, but here you have that sort of essence. यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही पेपर मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, एस्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. ठीक है, तो दे वोंट फील नेग्लेक्टेड. आपके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी गई है. नई एजुकेशन पॉलिसी में एक बड़ा चेंज जो एनसीएचएमसीटी में आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. पहले ये होता था कि अगर आपको एनसीएचएमसीटी के लिए प्रिपेयर करना है तो एक एज लिमिट थी. एज वाज अ बार. 25 वाज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अदर कैटेगरीज एंड 22 वाज फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट. From this year onwards, that criteria has been removed. Yani aspirants can be 25, can be 30, can be 35. At whatever age you think of joining hotel management, you can join. So there is no age bar now. तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा उन लोगों के लिए जो विद टाइम, अगर हम कहें कि एट दैट पॉइंट इन टाइम जब उनको एचएम में एडमिशन लेना था तब उन्होंने कहीं और कोर्स में एडमिशन लिया. लेटर ऑन दे केम टू नो कि भाई दिस कैन बी माय कप ऑफ टी. This is something that excites me. This is something which has that sort of positive essence. या ये वो सेक्टर है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ. Hospitality is one where I find myself. तो ऐसे लोगों के लिए it is going to be a boon जब एज बार हट गया है तो. So NCHMCT एक 800 मार्क्स बेस्ड पेपर है जिसमें 200 सवाल आपके पास रहेंगे. 200 questions comprising of 800 marks. That means every single question carries 4 marks. If you answer the question correctly, it will fetch you 4 marks. If you answered it incorrectly, it will set you back by -1. For every incorrect response, you'll be having -1 as deducted marks. And for every correct response, 4 marks will be given to you. So 25% की हम कहें negative marking यहाँ पर है, which is quite a standard in UG exams. So negative marking है, that is why you have to keep patience and mark only those questions in which you are more than 90% sure of. अगर आपको लगता है कहीं पर भी कि नहीं, I'm not that much sure, dicey है question, it is not something which I can answer, let it be, छोड़ दो, because गलत होंगे तो आप बहुत पीछे आ जाते हैं. So keeping that thing in mind, आपको ये चीज समझनी होगी कि जहां पर भी नेगेटिव मार्किंग है थोड़ा सा हाथ बांध कर पेपर देना होता है. इसका मतलब है बिल्कुल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके पेपर नहीं देना. ठीक है, सो थोड़ा बहुत एक कंसाइंस जो है वो बहुत जरूरी है. द एग्जाम कंप्राइजेस ऑफ 5 सेक्शंस. 5 सेक्शंस यहाँ पर आपके आते हैं. दैट बिगिंस विद न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, दैट मींस मैथमेटिक्स. देन यू हैव रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन. रीजनिंग का पार्ट हो गया. जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है. You have English as well. और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास सर्विस सेक्टर, यानी जिसको हम बोलते हैं कस्टमर सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, which comprises of 50 questions having 200 marks. Your English will be 60 questions having 240 marks. The rest of the 3 sections will have 30, 30, 30 each, providing you with 360 marks. तो जो सेगमेंट्स हैं, आप ज्यादातर सेगमेंट से आप फैमिलियर हैं. सर्विस एप्टीट्यूड इज समथिंग व्हिच यू नीड टू टेक केयर ऑफ. इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा बहुत अवेयरनेस अबाउट द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग कैसा प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी हॉस्पिटैलिटी में, ट्रेंड्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी क्या है, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं. फॉर दिस यू नीड अ गाइड. एक मेंटरशिप यहाँ पर जरूरी है. 4 marks will be provided to student for every correct marks. इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 3 घंटे का पेपर है. Now, this is something important. You have 3 hours. You have to solve 200 questions. For every single question, you will get less than 55 seconds. 54 seconds to be precise. अब यहां पर हमको स्ट्रैटेजी कैसी रखनी है. अगर मैं स्ट्रैटेजी की तरफ आऊं, you have to keep in mind कि time is running out. You can't devote more than 1 minute to any of the question unless you have made this much surety कि आपके पास अब टाइम ज्यादा है, क्वेश्चंस कम है. दैट कैन हैपन ओनली इफ 2-3 सेक्शन पे आपकी कमांड हो. सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज एक सेगमेंट जो सीए और जीके का पार्ट है. सीए जीके का पार्ट में 30 क्वेश्चन है. ये 30 क्वेश्चन करने में इट वोंट टेक मच
टाइम से 10 मिनट इज मोर देन इनफ, इतना में आप आराम से 30 क्वेश्चन कर सकते हो इफ यू आर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम लोग जब इंस्टीट्यूट पे प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को, तो काफ़ी स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन रहती है, काफ़ी फोकस्ड कंटेंट पे हम रहते हैं, और दैट इज़ द रीज़न कि पिछले 6-7 सालों से अगर मैं बात करूँ, मोर देन 90% की एक्यूरेसी पे हम लोग चल पा रहे हैं। अब दिस ईयर इज गोना बी नो डिफरेंट, ये इस साल भी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर नॉट श्योर ऑफ इट, बट यस, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। सो सीएजी के एक ऐसा टाइम सेविंग अप्रोच हो सकता है अगर आप उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो। 30 क्वेश्चन 10 मिनट में अगर आप निकाल पा रहे हो, तो 20 जो हम कहें एडिशनल क्वेश्चन का ग्रेस आपने यहाँ पर जमा कर लिया है। सीए, जीके और सर्विस एप्टीट्यूड, सर्विस एप्टीट्यूड में भी 15 to 20 मिनट्स अगर आप दे रहे हो, दैट इज इनफ। रीजनिंग इज इक्वली, अगर आपने कहीं पर भी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख ली हैं रीजनिंग की, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, अल्फाबेट सीरीज हो, और फॉर दैट मैटर आपका क्यूब एंड डाइसेस है, सिलॉग है, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से आ रही हैं, तो ये टाइम कंज्यूम नहीं करती। सारी चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स पर बेस्ड हैं, उतने ट्रिक्स के साथ खेलोगे, 30 क्वेश्चन 15 मिनट इज इनफ। मैथमेटिक्स में 3 टॉपिक पे सबसे पहले आपको कमांड करना है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, दी अदर वुड बी परसेंटेज। ये 3 सेगमेंट को तो सबसे पहले कवर कर लीजिए, इसके बाद फिर बाकी सारी चीजों पर आप जाएंगे, चाहे फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर आप टाइम वर्क पे देखें या और कोई XYZ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो, ये सब चीजों पे बाद में आप जाओगे। 3 बेसिक जो टॉपिक्स हैं उसको आपको कवर करना होगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आता है आपके पास पार्ट इंग्लिश का, दैट इज समथिंग विच कंज्यूम्स टाइम। पैसेजेस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस हैं, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बट एट द सेम टाइम आपको क्या काम करना है। भाई हमने ये तो डिस्कशन कर लिया कि उसमें टाइम लगता है, बट हाउ कैन वी रिड्यूस दैट टाइम। उसको रिड्यूस करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रीडिंग हैबिट हो। दिस इज की टू सक्सेस हियर। रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है, पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए। और एक्सटेंसिव रीडिंग करते हो, दैट इज ओके। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रीडिंग, एक्सटेंसिव होता है एंड इंटेंसिव होता है। जो सब्जेक्ट बेस्ड स्पेसिफिक चीजों को पढ़ रहे होते हैं, वी आर इंटेंसिव, डूइंग द पार्ट इंटेंसिवली। Whereas अगर एक आप न्यूज़पेपर को गो थ्रू कर रहे हो, जस्ट हैविंग अ लुक एट इट, थोड़ा बहुत न्यूज़ देखा, पढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, ग्लांस में जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। दिस इज वेयर यू नीड टू कीप योर फोकस। जितना जल्दी एनर्जी को आप चैनलाइज करोगे स्पिरिटेडली रीडिंग में, उतनी जल्दी ही आप ये समझिए कि आपका ब्रेन एक इंस्टिंक्ट बनेगा पेपर को अटेम्प्ट करने का। दैट इज दिस इज पर्टिकुलरली अ पार्ट विच यू नीड टू रिमेन फोकस्ड ऑन। मतलब पढ़ने की हैबिट होना बहुत जरूरी है। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे आपको निकालना होगा जिसमें आप सिर्फ एब्सोल्यूट रीडिंग करें। एब्सोल्यूट रीडिंग जब आप करना शुरू कर देंगे तो आपका एक रीडिंग पेस बढ़ जाएगा। रीडिंग पेस इज वेयर वी हैव टू डेफिनेटली कीप अ फोकस अपॉन, ये बहुत जरूरी है। ओके, सो ये तो एक बात हुई जनरलाइज अप्रोच अगर हम लोग कहें। अब हम स्पेसिफिक चीजों पर आते हैं। स्पेसिफिक चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी हम एग्जाम के मॉड्यूल को देखें, 200 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने का मतलब क्या होता है कि आपको सेंटर पर जाना है और ऑनलाइन पेपर देना है। सेंटर एलोकेट किए जाएंगे, वो आप चूज करेंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आप अपना डेडिकेटेड सेंटर चूज कर सकते हैं। जब सेंटर पर आप पहुंचते हैं, पेपर देखते हैं। अब होता क्या है, हम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, ये एक हमका एक कॉमन हैबिट है। इट इज नॉट समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डन, ऐसा नहीं है, वो सबके साथ ही हो जाता है कि द मोमेंट यू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। वहां पर फिर हमारे ऊपर एक प्रेशर है, प्रेशर टू परफॉर्म ऑन द डी डे। भाई एफर्ट तो लगा लिया, किसी ने साल भर से लगाया, किसी ने 2 साल से लगाया, किसी ने 2 महीने लगाया है। एवरीवन इज कमिंग अप विद सर्टेन काइंड ऑफ एफर्ट, बट जो उस एग्जामिनेशन टाइम पर प्रेशर को हैंडल कर लेगा, इज द वन हु हैव द सक्सेस की। ये बहुत जरूरी है। प्रेशर हैंडल करने के लिए क्या करना है आपको? काम एंड कंपोज रहना है। कंपोजर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सेंटर पर बैठे, एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप ये सोचोगे कि मैं एकदम से सारे क्वेश्चन कर डालूंगा। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो अपने आप को थोड़ा सा कंपोज रखिए। किस पर्टिकुलर सेक्शन को कितना टाइम डिवोट करना है, ये आप पहले से प्री सेट बनाकर चलेंगे। एक माइंडसेट बनाकर चलना है कि भाई क्वेश्चन में अगर मैथ्स के अटक गए हैं, एंड विल स्पेंड से डूइंग 3 or 4 मिनट इन अ क्वेश्चन, दैट इज गोना ruin everything for us। ठीक है, तो हमको वो नहीं करना है।
हम लोगों को थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव रहना है एग्जाम में। अब बात आती है कि अभी के टाइम पर अगर सपोज मेरे पास 1 महीना या 1.5 महीना है प्रिपरेशन का, 35 डेज है, 40 डेज है, हाउ शुड आई कैलकुलेट माय टाइम, हाउ मच टाइम शुड आई डिवोट ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हाउ मच डू आई नीड टू केटर थ्रू सेल्फ स्टडी, नोट मेकिंग में मेरे को कितना टाइम देना है, प्रैक्टिस सेट्स कितने करने हैं, मॉक पेपर्स किस तरीके से करना है, एनालिसिस ऑफ मॉक किस तरीके से होना चाहिए। देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी इन योर हेड। अब हम एक एक करके उनको आंसर करना शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग है हाउ मच टाइम डू वी नीड टू डेडिकेट, कितना टाइम मेरे को एक दिन में डिवोट करना है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। इफ यू आर राइट नाउ इन 12th एंड अपीयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, कीप योर फोकस ऑन बोर्ड ओनली अभी के टाइम पर, टिल दैट पॉइंट इन टाइम, जब तक आप एग्जाम से फ्री ना हो जाएं, बिकॉज ये जरूरी है कि जिस जगह पर है वहां फोकस्ड रहिए। द मोमेंट योर एग्जाम्स गेट ओवर, you will definitely need at least 9 to 11 hours of rigorous study। 9 से 10 घंटे भी अगर आप कर रहे हैं दैट इज आइडियल, जिसमें 6 hours एटलीस्ट डिवोट करना है आपको आपके सब्जेक्ट की स्टडी पे। 3 से 4 घंटे जो हैं वो आप रखेंगे रिवीजन के लिए। रिवीजन एवरी सिंगल डे इज इंपॉर्टेंट। आपने कल क्या पढ़ा था, आज उसको एक बार रिव्यू कर लेते हो, रिकैपिचुलेट कर लेते हो, द थिंग्स विल definitely be in your subconscious mind and that is going to assist you। तो पहली चीज तो ये आ जाती है कि हमको कितना टाइम डिवोट करना है, तो मुझे 9 से 10 आवर्स तक डिवोट करना होगा। अगर आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप हमारे तक पहुंचे, इफ यू रीच आउट टू अस, हमारा जो मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली कुछ 4 to 5 आवर्स डेली की क्लासेस आपको असाइन की जाती हैं। आफ्टर दैट 4 से 5 घंटे की पढ़ाई के अलावा आपको एटलीस्ट 7 से 8 आवर्स मैप करने होंगे अपने सेल्फ स्टडी के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 10 से 12 घंटे आपके एनी हाउ कंज्यूम होंगे पढ़ाई पे, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हमारे पास सिर्फ 35 से 40 दिन का ही एक सिस्टम मैपिंग है। तो 40 दिन में किस तरीके से हमको चीजों को करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए एक रोस्टर बहुत जरूरी है, एक शेड्यूल बहुत जरूरी है। अब बात आती है किस सेक्शन पे कितना टाइम देना चाहिए। तो सबसे पहले आप हर एक पर्सन की एक अलग अलग एबिलिटी है, और एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली अपने जो हम कहें स्ट्रेंथ हैं, वीकनेस हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, इसको आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सपोज आप इंग्लिश में लैक कर रहे हैं तो 7 या 8 आवर्स का जो स्टडी टाइम आप डिवोट कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम रिविजन, उसमें से एटलीस्ट 40% टाइम आप उस सब्जेक्ट को दे दीजिए। रिमेनिंग पे आप 20-15 करके रख सकते हो, मैनेज हो जाएगा। बट जो वीक सब्जेक्ट है उस पर अगले 15 से 20 दिन आपको बाकी सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली ट्वाइस टाइम देना होगा, 2 गुना समय देना होगा। तो अगर इंग्लिश वीक है, क्योंकि इंग्लिश ज्यादातर बच्चों के साथ क्या रहता है, एवरेज रहता है, बिलो एवरेज रहता है, और हिंदी मीडियम वालों के साथ थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न है, तो आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो मॉडरेट रहता है, या मैं कहूँ इजी टू मॉडरेट रहता है। देयर इज वेरी रेयर, लेस प्रोबेबिलिटी और बहुत रेयरिटी है कि एग्जाम डिफिकल्ट आ जाए। तो आप अगर एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, एक कंटिन्यूटी है, एक कंसिस्टेंसी है, और मोटिवेटेड अगर आप हैं, नो वन कैन स्टॉप यू। तो वो बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि मेरे को मॉक पेपर्स किस तरीके से करने होंगे। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि पहले आप कंटेंट पे जब टाइम देना शुरू कर देते हो, तो पोस्ट अ वीक और 2 आपको ये रियलाइज हो जाता है कि नाउ यू हैव प्रिपेयर्ड से 50 or 60% ऑफ योर एंटायर सिलेबस। It is now the time that you start with mocks. Before that, there is no point in going for mocks. भाई कंटेंट हमने कुछ पढ़ा नहीं है, मॉक पेपर अगर हम करना शुरू कर देंगे तो आपसे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे नहीं, एंड इट विल सेट यू बैक। कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल हम कहें इंसेप्शन के समय पर ही डिमोटिवेशन वाली फील आने लगेगी। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो एक बहुत जरूरी चीज है कि ये कास्केडिंग इफेक्ट होता है। अगर मैं आज कुछ थोड़ी सी गलती कर रहा हूं तो वो मुझे खुद लगने लगेगा कि यार नहीं, मुझसे नहीं होगा। अगले दिन फिर वो थॉट्स और प्रोमिनेंट होते चले जाएंगे, तो ये मल्टीफोल्ड्स बढ़ते जाता है। तो इस चीज को हमको रोकना है। नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर मुझे मॉक पेपर करना है तो मॉक पेपर के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मॉक पेपर एक हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक मॉक ड्रिल है बेसिकली। तो आप ये समझ के चलिए कि आपका एनवायरनमेंट वही है जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में फेस करना है। तो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करिए, तब जाकर वो मॉक पेपर आप स्टार्ट करेंगे। इट इज नॉट समथिंग कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, हल्ला चल रहा है, टीवी चल रहा है, डोरेमोन आ रहा है, सब चीजें देख रहे हैं और साथ में हम मॉक पेपर भी कर रहे हैं। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू।
तो सर्टेनली दैट थिंग हैज टू बी कीप इन माइंड कि जब मैं मॉक पेपर दे रहा हूँ तो मैं ही इकलौता हूँ वहां पर और कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बैठा। खुद को डिस्टर्ब करना है आपको और किसी को भी नहीं। मॉक कहाँ से लेने होंगे, मॉक कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए सक्सेस मंत्रा भी आपको असिस्ट करेगा। सक्सेस मंत्रा से आप मॉक परचेज कर सकते हैं। हमारे पास काफी सारे मॉक्स अवेलेबल हैं, आप लोगों के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। सो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस, विल असिस्ट यू इन दैट। मोर ओवर एनालिसिस की बात आती है तो आप मॉक पेपर को एनालिसिस करने के लिए खुद ही सफिशिएंट है। दिस यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस इन दैट। आप खुद बैठेंगे, खुद पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत मेहनत आपके लिए जरूर है कि आप ये समझ के चलिए कि जब आप मॉक पेपर एनालिसिस कर रहे हो तो आपको अपना वीक सेगमेंट जो है वो आइडेंटिफाई बहुत इजीली हो जाता है और स्ट्रॉन्ग पार्ट भी पता चल जाता है कहाँ। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपने किसी सेक्शन को कर तो बहुत कम टाइम में लिया है बट रिजल्ट भी बहुत कम आया आपका। दैट मीन्स वहां पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। फिर एक सेगमेंट ऐसा होगा जो आपसे हिल ही नहीं रहा, जिसको करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है। दैट इज अगेन अ वे ऑफ you can say you can definitely tackle that by practice। ठीक है, उस सेगमेंट को करने की जरूरत आपको पड़ेगी। फंडामेंटल्स हैं तो आप मैथ्स है या कुछ और सब्जेक्ट्स है तो फंडामेंटल पार्ट तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे और उन फंडामेंटल टॉपिक्स को कवर करके दोबारा से रीअसेस करोगे मॉक को, दोबारा से एक दो मॉक और दोगे, यू विल बी ऑनलाइन। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं चीजें ऐसे लगेंगी कि अब लीनियर हो गया है, चीजें अब बढ़ रही हैं। एफर्ट जब आप डालना शुरू कर देते तो सक्सेस का जो एक रास्ता है वो काफी आसान हो जाता है और आपको खुद ये चीज लगने लगेगी। अब बूस्टअप हो जाओगे थोड़ा बहुत बहुत हम कहें 2-3 सही भी अगर आपने मॉक किए हैं तो डेफिनेटली विल बी चार्ज्ड अप और दैट इज द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट डिवोटिंग मोर टाइम। कोई आपको कहेगा नहीं, ये एक इनर सेल्फ से आवाज आएगी कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा यू नीड टू पुट ऑन अ बिट मोर एफर्ट। आप वो दोगे फिर एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, अपने आप ही चीजें अलाइन होती चली जाएंगी। एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू विल फील स्ट्रीमलाइन कि भाई अब मैं फोकस्ड भी हूँ, कंटेंट भी सही से कर पा रहा हूँ, मॉक पेपर्स भी कर रहा हूँ, सक्सेस तो है। फिर इतनी चीजों पे काम करना है और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस लेवल तक ही लेकर जाना चाह रहा था कि अगर आप अभी तक शुरुआत नहीं कर पाए हैं फॉर XYZ रीजंस, दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू स्टार्ट, दिस इज द टाइम टू पुश। यहां से थ्रस्ट लीजिए और सक्सेस की स्टोरी आपकी खुद बन जाएगी। We at Success Mantra are going to help you in that run. Do connect with us और जिस अगर किसी भी तरीके से आपको असिस्टेंट चाहिए तो फील फ्री और कनेक्ट विद अस। बाकी इस तरीके से हम लोग कुछ और टॉपिक्स पर भी कभी कभी डिस्कशन करेंगे। सो विल कीप ऑन डिस्कसिंग द थिंग्स एंड डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस इन एनी कंसर्न रिलेटेड टू एनी ऑफ द थिंग्स। फॉर्म फिलिंग से लेकर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, रीच आउट टू अस। मिलते हैं फिर आप लोगों से बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, विल मीट सून, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।